اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئی آیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ زیر نظر آیت میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس آیت کے ترجمہ و مفہوم میں کیسے اپنے ماننے والوں کو دھوکہ دیا، بلکہ اپنے ہی موقف و عقیدہ کو کیسے غلط ثابت کیا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ آیت ہے آل عمران کی، اور یہ قادیانی استدلال ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ حوالہ ہے، یعنی محمد صرف ایک رسول ہے، ان سے پہلے سب نبی فوت ہو گئے ہیں۔ اب کیا اگر یہ بھی فوت ہو جائیں یا مارے جائیں تو ان کی نبوت میں کوئی نقص لازم آئے گا جس کی وجہ سے تم دین سے پھر جاؤ؟ اس آیت کا ماحصل وہ یہ لیتے ہیں کہ اگر نبی کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا ضروری ہے تو کوئی ایسا ہی پہلے نبیوں میں سے پیش کرو جو اب تک زندہ موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر مسیح ابن مریم علیہ السلام زندہ ہے تو پھر یہ دلیل جو خدا تعالیٰ نے پیش کی صحیح نہیں ہوگی۔ مطلب مرزا غلام احمد قادیانی اس آیت سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ یہ ہے جی حضرت میر محمد اسحاق صاحب، اور یہ المائدہ سے ترجمہ، اور یہ آل عمران سے آپ لوگ دیکھ چکے ہیں پہلے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس میں بھی یہی بات ہے، مسیح ابن مریم مگر رسول یقیناً گزر چکے ہیں پہلے اس کے رسول۔ تو یہ دونوں قادیانی ترجمے، ایک المائدہ سے دوسرا آل عمران سے ہیں، دونوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، قد خلت من قبلہ الرسل، اور یہاں پہ بھی قد خلت من قبلہ الرسل، مگر ترجمہ مختلف ہے۔ نیز یہ کہ قادیانی خلط کا مطلب و مفہوم وفات لیتے ہیں، اور الرسل کا سب یا تمام رسول۔ اس کے باوجود دجل کی انتہا دیکھیں، ایک آیت میں ترجمہ رسول، یہاں پہ الرسل کا ترجمہ اس کے رسول، پہلے اس کے رسول، اور دوسرے میں ترجمہ سب یا تمام رسول، جیسے یہاں پہ الرسل سب رسول۔ تو آگے چلتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے خلط کا ترجمہ و مفہوم وفات، اور الرسل کا ترجمہ و مفہوم سب رسول لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنا چاہی ہے۔ ایسے ہی ان کے ماننے والے کرتے ہیں، مگر ہمارا دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب اگر اپنی بات و دلیل میں سچے ہیں تو ان کے ماننے والے ان دونوں آیت کا ایک جیسا ترجمہ و مفہوم کر کے دکھا دیں۔ یہاں پہ بھی یہی ترجمہ اور یہاں پہ بھی یہی ترجمہ۔ اگر نہیں کریں گے تو ثابت ہوگا کہ مرزا نے دجل و کذب کیا، اور اگر ایسا کریں گے تو اسلام سے تو خارج ہی ہیں، قادیانی سے بھی خارج ہو جائیں گے۔ المائدہ کی آیت، اس آیت میں اگر وہ ترجمہ سب رسول کرتے ہیں، اگر یہاں پہ ترجمہ رسول کے بجائے سب رسول یا تمام رسول کرتے ہیں، تو قادیانیوں کے مطابق ترجمہ مفہوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سب تمام رسول نبی وفات پا چکے ہیں، تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حرف آتا ہے، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام ہی خاتم ٹھہرتے ہیں۔ اور جیسا کہ انہوں نے آل عمران کی آیت میں ترجمہ سب رسول کیا، جیسا کہ یہاں پہ سب رسول کیا یا تمام رسول کیا، تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب رسول وفات پا گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم و آخری ٹھہرے، لہٰذا مرزا کا دعوی نبوت خود بخود جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ دونوں آیات قادیانیوں کے سامنے ہیں، آپ جس طرح چاہیں آیات کا ایک جیسا ترجمہ کر کے مرزا صاحب کو بچا لیں، اور اگر نہ بچا سکیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف لوٹائیں اور خود کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں۔ حجت کے لیے دو آیات ہی کافی ہیں، مگر ہم آپ کی تسلی کے لیے مزید وضاحت کر دیتے ہیں۔ دراصل اس آیت کا پس منظر یہ نہیں ہے جو کہ قادیانی بیان کرتے ہیں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ احد میں ابن کمیہ کافر نے مشرکوں میں افواہ پھیلا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو گئے ہیں، جس سے مسلمانوں کے قدم ڈگمگا گئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 144 سے 146 تینوں آیات میں مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ جیسا کہ آیت نمبر 146 میں درج ہے یہ، اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ یا اہل اللہ نے دشمنوں کے ساتھ لڑے، یعنی بہت سے اللہ والے بہت سے نبیوں کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں لڑے، اور
मुश्किलात में ना हिम्मत हारी, ना बुज़दिली दिखाई और सब्र किया। लिहाजा अल्लाह ताला ने हिम्मत हारने वाले लोगों से, जिन लोगों ने यहाँ पे ग़ज़वे उहद में हिम्मत हारी, उन लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक रसूल हैं जो अल्लाह के रास्ते में लड़े हैं, जैसा कि ये नबी लड़े हैं और बहुत से नबी हुए हैं जिनके साथ अल्लाह वालों ने मिल के लड़े हैं दुश्मनों से, अल्लाह के दुश्मनों से। तो यहाँ पे भी उसी बात को समझाया जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक रसूल हैं जो अल्लाह के रास्ते में लड़े हैं। इनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजरे हैं, जैसा कि यहाँ पे ज़िक्र है, जो अल्लाह की राह में लड़े। अगर अब लड़ाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो जाएं, जैसा कि अफ़ाइन माता औ कुतिला अनकलबतुम, के कत्ल हो जाएं या जंग में हादसाते या किसी भी सूरत में वफ़ात पा जाएं, तो क्या तुम लोग अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? फिर इन्हीं आयात में ये वजाहत भी कर दी कि सब्र करने वालों और दीन पर कायम रहने वालों के लिए बेहतरीन सवाब है, जबकि भटकने वालों के लिए कहा कि वो सिर्फ अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक तमाम नबी इल्लाती भाई हैं और सबका दीन एक ही है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। जबकि एक नबी या रसूल के बाद दूसरा आता है तो वो पहले से मौजूद दीन पर ही अमल पैरा होता है या तजदीद दीन करता है, ना कि पहला दिन ख़त्म हो जाता है और ना आने वाले नबी से नया दिन शुरू होता है। लिहाजा ना तो ये दीन आदम अलैहिस्सलाम के जाने से ख़त्म हुआ और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने से ख़त्म होगा। इसकी वाज़ेह मिसाल ला इलाहा इल्लल्लाह है कि तमाम नबियों ने इसी कलमा की दावत दी है। लिहाजा एड़ियों के बल फिरने वाले ही मुर्तद होंगे, दीन इस्लाम तो कायम रहेगा। लिहाजा आयत में इन पैगंबरों का जिक्र है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जिक्र है और इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल, उन पैगंबरों का जिक्र है जो अल्लाह की राह में लड़े, ना कि आदम से ईसा अलैहिस्सलाम तक सब रसूलों की वफ़ात की खबर है इस जगह पे। इसलिए बहुत से रसूल तर्जमा है, क्योंकि सब अम्बिया ने जिहाद नहीं किया और इसलिए यहाँ पे भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बहुत से। आगे चलते हैं रसूल की वजाहत। और वलक़द अरसलना नूहन व इब्राहीम व जअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिमुन नबुव्वता, और यहाँ पे आगे सुम्मा कफ़ैना अला आसारिहिम बिरुसुलिना व कफ़ैना बिईसा इब्न मरियम। ज़ेर नज़र आयत में नूह और इब्राहीम के बाद पैगंबर भेजने का जिक्र है, जैसा कि यहाँ पे, जिसके लिए रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजने का जिक्र है। लिहाजा रसूल का मतलब सब या तमाम रसूल नहीं है, क्योंकि हज़रत नूह और इब्राहीम से पहले बहुत से रसूल हो चुके हैं। इस आयत में भी अगर रसूल का मतलब सब रसूल लिया जाए तो मानना होगा कि तमाम नबी या सब रसूल बनी इसराइल की तरफ ही भेजे गए, जैसा कि यहाँ पे व अरसलना इलैहिम रुसलन, हमने बनी इसराइल से अहद भी लिया और उनकी तरफ पैगंबर भी भेजे। अगर यहाँ पे रसूल का मतलब सब होता तो फिर तमाम पैगंबर उधर ही जाते। चलें जी आगे चलते हैं। ये अल-रसूल का लफ्ज़ मुख्तलिफ़ जगह पे इस्तेमाल हुआ है कुरान में, जो हवाला जात दिए गए हैं, आप ख़ुद इस पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम वजाहत करें तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और ये मज़ीद वजाहत है जी, माता और कत्ल की वजाहत, अफ़ाइन माता औ कुतिला अनकलबतुम अला आकाबिकुम, और ये कादियानी इस्तदलाल जो पहले मिर्ज़ा साहब का गुज़र चुका है वो है। और यहाँ पे अहमदिया पॉकेट का नया हवाला दिया जा रहा है, वो भी इसमें यही कहते हैं कि गुज़र जाने की खबर दी है और गुज़र जाने के तरीक़ सिर्फ दो करार दिए हैं, मौत और कत्ल। आगे चलते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने आयत नंबर 156 में अल्लाह की राह में लड़ने वालों के लिए लफ्ज़ कत्ल, मारे जाओ या लड़ते हुए मर जाओ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इस आयत में। और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में मारे जाओ, अगर तुम अल्लाह के रास्ते में मारे जाओ या मर जाओ, मैं अल्लाह की राह में लड़ने वालों के लिए लफ्ज़ कत्ल, मारे जाओ या लड़ते हुए मर जाओ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वैसे ही अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी यहाँ पे अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए कत्ल, मारे जाओ, ठीक है, या मर जाओ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है।
माता औ कुतिला। क्या कादियानी इस जगह भी इस्तदलाल लेंगे कि अल्लाह ताला ने आदम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम मुसलमानों के लिए मौत के सिर्फ 2 तरीके बताए कि वो कत्ल हो जाते हैं या तबाही मौत पाते हैं। लिहाजा इन अल्फाज से ये मुराद नहीं कि नबियों के मरने के 2 ही तरीके हैं कि या वो कत्ल कर दिए जाते हैं या तबाही मौत मर जाते हैं, बल्कि अल्लाह की राह में लड़ते हुए 2 अमवात का जिक्र किया गया है। पहला कत्ल या मारे जाओ लड़ाई में जिसे दुश्मन कत्ल करते हैं, दूसरा मर जाओ लड़ाई में जिसे बराह रास्त दुश्मन कत्ल ना करे मगर किसी भी तरह मारा जाए। ये भी अहमदिया पॉकेट का एक हवाला है। इसमें पहले तमाम रसूलों की जब गुजर जाने की खबर थी, ये बात गुजर चुकी है, और इसमें वो कहते हैं कि 2 ही तरीके हैं, मौत और कत्ल, यानी बाज़ बज़रिए मौत तबाही गुजरे और बाज़ बज़रिए कत्ल। अब हम इस बात को साबित करें। काज़ी मुसन्निफ़ आयत का हवाला देकर ये साबित करता है कि सच्चे नबी या रसूलों की वफ़ात के 2 ही तरीके हैं कि या तो वो कत्ल कर दिए जाते हैं या वफ़ात पाते हैं। ये मिर्ज़ा साहब का इस्तदलाल पहले गुजर चुका है, और यहाँ पे अहमदिया पॉकेट में वो ये बात करता है तो हम अगर ये कोई झूठा इल्हाम बनाकर मेरी तरफ मंसूब करता और कहता कि ये इल्हाम मुझे खुदा की तरफ से हुआ है, तो हम इसका दायां हाथ पकड़कर इसकी शाहरग काट देते। गोया अगर कोई शख्स झूठा इल्हाम बनाकर खुदा की तरफ मंसूब करे तो वो कत्ल हो जाता है। और चूँकि आगे फिर वो बात करते हैं, इसमें वो ये कहते हैं कि और साबित करते हैं कि झूठे नबी या रसूल लाजमी कत्ल कर दिए जाते हैं, और ये एक हवाला देते हैं कोई बाइबल से। अब हम इसका खुलासा पेश करते हैं आपसे। सच्चे नबी कत्ल कर दिए जाते हैं, और यहाँ पे भी झूठे नबी कत्ल कर दिए जाते हैं। कादियानी मुसन्निफ़ आयत का हवाला देकर यह साबित करता है कि सच्चे नबी या रसूलों की वफ़ात के 2 ही तरीके हैं कि या तो वो कत्ल कर दिए जाते हैं या वफ़ात पा जाते हैं, जबकि इधर कादियानी मुसन्निफ़ आयत का हवाला देकर यह साबित करता है कि झूठे नबी या रसूल लाजमी कत्ल कर दिए जाते हैं। हमारा सवाल ये है कि कादियानियों के मुताबिक सच्चे नबी की मौत का दूसरा तरीका भी कत्ल है और झूठे नबी का भी, तो इनमें फ़र्क कैसे होगा कि ये सच्चा कत्ल हुआ कि झूठा। और जैसे कि कुरान में भी जिक्र है मुस्लिफ अंबिया के नाहक कत्ल का, भी आयतिल्लाहि वक़त्लिहुमुल अंबिया बिगैरि हक़। सवाल, अगर झूठे का कत्ल अटल है तो अल्लाह का कानून होना चाहिए कि सच्चा कत्ल ना किया जा सके। लिहाजा साबित होता है कि ज़रूरी नहीं कि झूठा मुद्दई नबूवत लाजमी कत्ल हो, और ना ही कत्ल होने से झूठा सादिक हो जाएगा। ये बात थोड़ी सी अक्ली दलील हम पेश कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। फ़र्ज़ करें कादियानियों में एक शख्स जिसकी उम्र 20 साल है दावे नबूवत करता है और ये 80 साल ज़िंदा रहेगा या ज़िंदा रहता है। सवाल, क्या अब कादियानी 60 साल इंतज़ार करेंगे कि अगर कत्ल हो गया तो झूठा होगा और सच्चा हुआ तो फौत हो जाएगा? नीज़ ये कि इसके मरने के इंतज़ार में न जाने कितने कादियानी इससे पहले ईमान लाए बगैर मर जाएंगे। सवाल, या कादियानी पहले से मौजूद कादियानी तालीमात से इस शख्स को परखेंगे? यकीनन आप इस शख्स को पहले से मौजूद तालीमात पर परखेंगे। लिहाजा साबित होता है कि झूठे नबी को परखने के लिए तालीमात को देखा जाए, ना कि इंतज़ार करना पड़ेगा कि कत्ल होता है या तबाही मौत मरता है। लेकिन इस्लाम में 1400 साल पहले भी और आज भी यही फ़ैसला है कि नया नबी नहीं बनेगा, इसलिए परखने का जवाज़ ही पैदा नहीं होता, बल्कि 1000 साल से पहले का इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा मौजूद है कि परखने वाला इस्लाम से खारिज है, नबी को परखने वाला। अब फ़र्ज़ कर लें कि नबूवत का दावेदार शख्स कादियानियत की मौजूदा तालीमात पर वो पूरा नहीं उतरता, तो क्या आप इस पर ईमान लाएंगे? ऐसे ही जैसे मिर्ज़ा साहब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालिक किसी एक हदीस पर भी पूरा नहीं उतरते। ख़ुद मुताला कर लें या हमारी वीडियो अहादीस से रद्द कादियानियत देख लें। जब वो शख्स गलत साबित हो रहा होगा तो वो यकीनन मिर्ज़ा साहब की तालीमात को तहरीफ़ करेगा या इसके कोई और मानी लेगा जो इसके हक़ में होंगे। ऐसे ही जैसे मिर्ज़ा और उसके मानने वाले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो बात भी कुरान व हदीस में है वो इसको नहीं मानते या तहरीफ़ करते हैं। इन हालात में यकीनन कादियानी इस शख्स को तहरीफ़ी बात को रद्द करेंगे, इस शख्स की तहरीफ़ी बात को रद्द करेंगे और मिर्ज़ा साहब की बात पर अमल करेंगे। ऐसे ही मुसलमान मिर्ज़ा की कुरान व हदीस में तहरीफ़ात ख़ास कर ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के मुतालिक मन घड़त तहरीफ़ात को झुटलाते हैं
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن میں موجود وہ باتیں جس سے مرزا وفات عیسیٰ ثابت کرنے کی جھوٹی کوشش میں لگا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پڑھ کر، پرکھ کر، جان کر، سمجھ کر، سمجھا کر 150 کے قریب احادیث میں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے۔ قادیانیوں کو ایک چھوٹا سا مشورہ ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو خدا کے لیے بچائیں، محفوظ رکھیں۔ آپ کو ایک انتہائی آسان طریقہ بتاتا ہوں، وقت کی بھی بچت، رزلٹ بھی 5 منٹ میں سامنے۔ مثلا ایک شخص کی پیدائش پر اس کا والد کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے گا، والدہ کہتی ہے پروفیسر، دادا کہتا ہے بزنس مین۔ اب پرکھنے کے لیے 20 سال لگ سکتے ہیں، بنے گا نہیں بنے گا، بن رہا ہے یا نہیں۔ فرض کریں 50 سال بعد وہ فوت ہو گیا، مگر اب جاننے کے لیے کہ وہ ڈاکٹر تھا، بزنس مین تھا، پروفیسر تھا یا کچھ اور 5 منٹ کی بات ہے۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کیا تھا، 5 منٹ میں رزلٹ سامنے ہیں۔ ایک طرف احادیث کا مجموعہ رکھیں، دوسری طرف دیکھیں کہ مرزا نے وہ افعال واقعات انجام دیے کہ نہیں جو احادیث میں اصل مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مذکور تھے۔ احادیث کے مجموعہ کے لیے دیا گیا لنک دیکھیں اور 5 منٹ میں رزلٹ پا کر اپنے ایمان کو بچائیں، محفوظ رکھیں۔ اور یہ عربی لغت میں ہم نے خلط کا مطلب بتایا ہے کہ موت نہیں، اگر ایسا ہے تو ثابت کریں۔ مختلف حوالہ جات ہم نے دیے ہیں، تو یہ آپ لوگ غور پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن میں مختلف جگہ پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، تو تحریفات سے بچیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام قادیانیوں کو ہدایت دے اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق دے اور آگے اس بات کو پہنچانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے دین اسلام پر۔ آمین ثم آمین۔